Good morning to all the students of class 9. Most welcome to all of you in this video lecture. This is Karnesh Mishra, subject teacher of social study from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we will discuss or we will revise the rest part of the of the first chapter, history, that is the French Revolutions. So today the topics which we are going to discuss is the outbreak of the revolutions, क्रांति की शुरुआत. So dear students, Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learnt in the previous sections. आप लोगों ने पिछले भाग में देखा कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे. How do you think he could have gone about doing this? उसने ऐसा कैसे किया होगा? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the state generals, which would then pass his proposals for new taxes. The state generals was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in the year 1614. So dear students, पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे. क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था. इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी. स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लैरिसी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट विच इज कंप्राइजेज ऑफ द कॉमन पीपल्स, अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते थे. लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए. इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी. सो द लास्ट टाइम द मीटिंग वॉज कॉल्ड in the year 1614. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass the proposals for new taxes. Okay dear students, तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the state generals to pass proposals for a new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in a row facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. It means, dear students, ये जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई 5 मई 1789 को फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 के द्वारा, इसमें प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय का एक आलीशान भवन को सजाया गया. इसके लिए पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए. तो टोटल 300 representatives were from the first state and 300 from the
second states, and they were seated in a row facing each other on two sides, while 600 members of third states. जबकि तीसरे स्टेट्स के जो 600 प्रतिनिधि थे वो उनके पीछे खड़े किए गए थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध, शिक्षित प्रतिनिधित्व, तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व जो है पहले और दूसरे की स्टेट की अपेक्षा समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। So third state was represented by its more prosperous and educated member. Peasant, artisans and women were denied entry to assembly. However, their grievances and demands were listed in some 14,000 letters which the representatives had brought with them. So dear students, ये जो सभा हुई थी, बैठक जो बुलाई गई थी नया टैक्स पास करने के लिए, प्रपोजल पास करने के लिए, इसके लिए जो है जो प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय का एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत यानी पहले और दूसरे स्टेट के अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। ओके स्टूडेंट्स, so the third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasant, artisans and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 of letters which the representatives had brought with them. Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practices, but members of the third state demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each members would have one vote and each vote have one value. So dear students, स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। So dear students, this was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो member of the third state walked out from the assembly in protest. तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वो विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। The representative of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे
यह संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का अपने आप को प्रवक्ता मानते थे। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. 20 जून को ये जो प्रतिनिधि थे वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France and would limit the powers of the monarch. तो ये जो प्रतिनिधि थे ये 20 जून को इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। They were led by Mirabeau and Abbassias. Who were the Mirabeau and Abbassias? Let's let you know. Was born in a, dear students, Mirabeau and Abbassias was born in the noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. ये जो Mirabeau थे और Abbassias ने इस प्रतिनिधित्व सभा का नेतृत्व किया। मेरेब्यू का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था और एबिसियास का, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों यानी कि फ्यूडल प्रिविलेज वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत थे। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के साथ मेरेब्यू ने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समझ जोरदार भाषण भी दिए। और एबेसियास मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। So dear students, representatives were led by the Mirabeau and Abbassias. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society feudal privilege. He brought out a journal and delivered a powerful speech to the crowds assembled at Versailles. Abbassias originally a priest, जो Abbassias थे या जो पादरी थे, and wrote an influential pamphlet called What is the Third State, और ये तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली पैम्फलेट इन्होंने जो है यानी प्रचार पुस्तिका लिखी। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France seethed with turmoil. Dear students, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। Seethed with turmoil means there was a movement in all over the France against there were protests of the peoples against the monarch. कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक की स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situations and hoarded supplies. After spending hours in long queues at a bakery, crowds of angry women
stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. So dear students, जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरे फ्रांस में आंदोलन छिड़ गया था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जो है जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतें, रुष्ट औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भड़की हुई ये जो लोगों की भीड़ थी, इसने 14 जुलाई को बैस्टिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, बैस्टिल को ढा दिया, which was the symbol of despotic power of the king, जो कि जो है सम्राट की निरंकुश शक्तियों का जो प्रतीक था। It was hated by the people because it was the symbol of the despotic power. It was the symbol of the despotic power of the king. In the countryside, rumors spread from village to village that Lord of the Manor had bands of brigands who were on their way to destroy ripe crops. देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह को बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े। इस तरह का जो अफवाह फैल गया। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked chatiks. They looted, hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled away. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. तो विद्यार्थियों आगे क्या हुआ? आगे यह हुआ, जब यह अफवाह पूरे फ्रांस में गांव-गांव में देहाती इलाकों में जो फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह को बुलाया है और वे पकी फसलों को नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं, तो कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदाल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका होस एंड पिचफॉक्स मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, पिचफॉक्स मतलब आपका होता है बेलचा। तो इससे ग्रामीण किलो को अंग्रेजी में बोला जाता है चेटिक्स, CHETEAUX चेटिक्स, तो बोला जाता है ग्रामीण किलो पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए, बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। तो जो कुलीन थे, a large number of nobles fled from their house, वे अपना घर छोड़कर भाग गए। Many of them migrating to the neighboring countries, और उसमें बहुत से जो थे वो पड़ोसी देशों में जाकर शरण लिए। Faced with the power of revolting subject, Louis XVI finally accorded recognitions to the National Assembly and accepted the principle of his power would from now be checked by the constitutions. अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस 16
ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एज अ रिजल्ट ऑन द नाइट of 4 August 1789, on the night of 4 August 1789, 4 अगस्त 1789 को the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया, यानी कि सामंती व्यवस्था को, कॉन्स्टिट्यूशन को जो लागू किया। मेंबर्स ऑफ द क्लेर्जी टू वेयर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो पादरी वर्ग के जो लोग थे, पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले समझाया कि फ्रांस समाज 18वीं शताब्दी में 3 वर्गों में और उससे पहले 3 वर्गों में जो विभाजित था। प्रथम वर्ग जो है पादरियों का, क्लेरिजी का था। दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग के लोगों का जो है नोबेल का था। और तीसरे के अंतर्गत जो है पढ़े लिखे समृद्धशाली जो है अमीर, वह अन्य जो है आम किसान, वकील, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि आते थे। तो जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के यानी कि क्लेरिटी, नोबेलिटी थे, उन्हें जन्मजात विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन्हें किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। तो इनको भी जो बाध्य किया गया, पादरियों को विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। धार्मिक कर जो कि हमने आप लोग को पता है कि टाइप देना पड़ता था ना किसानों को, जो चर्च को। इट वाज द 1/10 of the agricultural produce which third states of people had to pay to the church, जो कि थर्ड स्टेट्स के लोगों को चर्च को धार्मिक कर के रूप में जो है देना पड़ता था। तो यह भी जो है समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, the assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privilege. Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated. Confiscated means taken back, वापस ले लिया गया। As a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. Okay, dear students, France become a constitutional monarchy. फ्रांस कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की हुआ, इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट इट, दैट हाउ फ्रांस बिकम constitutional monarchy. So dear students, the National Assembly completed the draft of Constitution in 1789. जो नेशनल असेंबली थी उसने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, सरकार की विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में विभाजित कर हस्तांतरित कर दिया गया। So dear students, these powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to the different institutions of the government, the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. Figure 7 explains how the new political system
what it is given in your book, dear students. तो चित्र 7 में 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी दिया हुआ है आपकी जो है पुस्तक में। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। The constitutions of 1789 vested the power to make law in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. तो 1791 में सन 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार जो था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गित किया गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, all the citizens, not all the citizens however had a right to vote. Only men above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor's wage were given the status of active citizen. That is, they were entitled to vote. The remaining men and all women were classed as a passive citizens. To qualify as an electors and then as a member of assembly, a man had to belong to the higher brackets of taxpayer. Okay students, तो शेष जो पुरुष और महिलाएं थे उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गित किया गया था, जिनकी उम्र 25 से कम थी और जो अधिक जो है टैक्स नहीं जमा कर पाते थे उनको निष्क्रिय घोषित किया गया। उनको मत देने का अधिकार नहीं था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना बहुत जरूरी था। The constitutions began with the declarations of rights of men and citizens. संविधान पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। That's all. Thank you for listening me. Have a great day to all of you. Wish you all the best. More we will discuss in the next video lecture.